یہ ابو جہل کو قتل کرنے والے وہ دو شہزادے ہیں جب بدر کے لیے جا رہے تھے تو یہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ان کو نکال دیا، فرمایا آپ بچے ہو گھر چلے جاؤ، آپ کو اجازت نہیں ہے جہاد کے لیے جانے کی۔ تو دونوں رونے لگے تو سرکار کو بچوں کا رونا گوارا نہیں ہوتا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا دیکھتے ہیں، پھر تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ پتھر اٹھا کے نیچے رکھے، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ پتھر نیچے رکھ کر کھڑے ہو گئے، ساتھیوں کے کندھوں تک پہنچ کے کہا یا رسول اللہ دیکھ لیجیے ہم ان کے برابر۔ سرکار نے فرمایا تم جا کر کیا کرو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں پتا چلا ہے ایک خبیث آپ کو گالی دیتا ہے، اسی کو واصل جہنم کیا۔ جب واصل جہنم کیا، حضرت معاذ کا یہ بازو کٹ گیا تو جو سکن تھی، ماس تھا، اس کے ساتھ بازو لٹک رہا تھا۔ آپ دوسرے بازو سے تلوار چلا رہے تھے، جب دوسرے بازو سے تلوار چلا رہے تھے یہ بازو آڑے آ رہا تھا، تلوار چلانے میں پرابلم پیدا کر رہا تھا، تو آپ نے وہ بازو پاؤں کے نیچے رکھ کے اس طرح دریغ ہوتا ایک چھوٹا سا بچہ عشق رسول میں اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر الگ کرتا ہے کہ یہ میرے نبی کی عزت پر پہرا دینے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تمہارے لیے ہر چیز رکاوٹ بنی ہے، تو پھر بتا رسول اللہ سے پیار کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بتا جو سرکار نے یہ فرمان دیا ہے تمہیں، اس کے مطابق پھر تیری محبت تو ان سے ہے۔ یہ دنیا میں یہ اصول رہا ہے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل میں جب یہ جھگڑا ہوا تھا تب بھی ایک حق پر تھا ایک باطل پر تھا، یہ ہمیشہ سے دو فرقے رہے ہیں، یہ دو گروہ رہے ہیں، ایک حق والا رہے گا ایک باطل والا رہے گا۔ تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے، تو حق والوں کے ساتھ ہے یا باطل والوں؟ سبحان اللہ۔ اور بتا دوں میں تم کو، باطل والوں کی جو ڈور ہے، جو کمان ہے، وہ اللہ نے شیطان کو دی ہے، اور حق والوں کی جو ڈور ہے اللہ نے رحمان کے ہاتھ رحمان کے ہاتھ میں ڈور ہے، تو اس میں رہنا چاہتا ہے، جس کی شیطان کے ہاتھ میں ڈور ہے تو اس میں جانا چاہتا ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ احد کی جنگ میں، غزوہ احد میں آپ کے یہ اگلے دو دانت جو تھے یہ ٹوٹ گئے تھے، نقصان پہنچا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہلے بھی بڑے خوبصورت تھے، پہلے بھی بہت خوبصورت تھے، لیکن کوئی دنیا میں ایسا بندہ بتا دو مجھے جس کے دانت اگلے دو نہ ہو اور خوبصورت نظر آتا ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پہلے بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے خوبصورت تھے، لیکن احد میں جب سرکار کی ناموس پر، سرکار کی عزت پر یہ دانت قربان کیے، اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح اتنے خوبصورت ہو گئے کہ جب بھی بات کرتے تھے دل کرتا تھا کہ ان کا چہرہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار جوش رحمت میں تھے، شفقت سے اپنے ہاتھ میرے چہرہ پر مار دیے، میرے چہرہ پر آپ نے ہاتھ مبارک اس طرح پھیر دیے، پر اتنا نور آیا جب آپ کی عمر کا آخری وقت تھا تو پھر ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ کی تیمارداری کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ آخری وقت جب بڑھاپا آتا ہے بندے کے چہرے پہ جھڑیاں ہوتی ہیں اور نور ختم ہو جاتا ہے، وہ چہرے کی رنگت ہی بدل جاتی ہے، اور پھر نزا کا وقت ہو پھر تو اور ہی رنگت بدل جاتی ہے، موت کا خوف اتنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت قتادہ اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اتنے حشاش بچاش تھے، اور ان کا چہرہ اس طرح تھا جیسے جوان آدمی کا چہرہ ہوتا ہے، اور اتنا چمک رہا تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، ان کا گھر کہتے ہیں بڑا وسیع تھا، میں ان کے سامنے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، کہتے ہیں گھر کے
सहन के पीछे से एक बंदा गुजरा, मेरी कमर उसकी तरफ थी, मैं कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे की तरफ देख रहा था, मैं आपके चेहरे में उस गुजरने वाले को देख लिया। मैंने हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे में पीछे से गुजरने वाले को देख लिया। मैंने पूछा, कतादा ये तुम्हारे चेहरे पर ये कहां से नूर आया है? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन जोश रहमत में थे, आपने शफकत से अपने हाथ मुबारक मेरे चेहरे पर फेर दिए, तब से ये चेहरा नूर माशाअल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हजरत अब्दुल्ला बिन जैश और हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप गज़वा उहद में कहते हैं कि हमने अलग होकर दोनों ने ये मशवरा किया कि हम दुआ करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए दुआ में आमीन कहेंगे। कहते हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, मैंने दुआ की कि अल्लाह मेरा किसी बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला हो और मैं लड़ूं, वो मुझसे लड़े, फिर मैं उसको कत्ल कर दूं, वासिले जहन्नम कर दूं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने आमीन कहा। कहते फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने दुआ की और आपने कहा, ए अल्लाह मेरा बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला हो, मैं उससे लड़ूं, वो मुझसे लड़े, फिर वो मुझे शहीद कर दे और मेरा नाक और कान काट कर उसका हार बना दे। तो फरमाया, मैंने आमीन कहा। जब मैंने देखा हम दोनों की दुआ कबूल हुई, मेरा भी बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला हुआ, मैंने उसको वासिले जहन्नम किया। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जाश, जब आपको मैंने देखा, आपका भी बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला हुआ, उसने आपके नाक और कान काट दिए। ये आप हजरत साद बिन अबी वक्कास अपने बेटे को ये बात बता रहे थे, उनको ये बात सुना रहे थे और फरमाया कि बेटा मेरी दुआ से बरतरी लेगी हजरत अब्दुल्ला बिन जाश की दुआ। फरमाया कि मैंने पूछा था, जब उसने दुआ की हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो मैंने पूछा था, ए अब्दुल्ला तुमने ऐसी दुआ की क्यों की? फरमाया कि मैंने ये दुआ इसलिए की है कि जब रोजे क़यामत मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा तो मेरा नाक और कान नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, ए अब्दुल्ला बिन जाश बता तेरा नाक और कान कहाँ है? तो मैं कहूंगा, ए अल्लाह जल्ल जलालहू, मैंने ये नाक और कान तेरे रास्ते में और तेरे नबी के रास्ते में कटवा सदकता अब्दुल्ला, तूने सच कहा है। फरमाया इसी बात के लिए ये दुआ कर रहा और हमें सहाबा किराम रिदवान अल्लाह अजमाइन ने ये बात बताई है कि जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में बात आए, फिर किसी से बहस मुबासा नहीं करना है, फिर सीधा मुबालका करना है, सीधा मुबालका करना है, बहस मुबासा नहीं करना है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, आप हिंदुस्तान में थे, राजे महाराजों का दौर था, वहां वो अपनी आग जलाकर वहां इबादत कर रहे थे। आप पास से गुजरे, फरमाया ये क्या कर रहे हो? कहा इबादत कर रहे हैं। पूछा ये कौन है? फरमाया हमारा खुदा है। फरमाया अच्छा तुम्हारा खुदा है, फिर इसमें हाथ तो डालो, इसकी शफकत और मोहब्बत तो आजमाओ, ये तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी शफकत करता है, इसमें हाथ तो डालो। फरमाया ए गरीब नवाज, क्या तुम हमें पागल समझते हो? हम इसमें हाथ डालें? ये आग है, इसकी तासीर है जला देना, जिस तरह छुरी की तासीर है काट देना, तीर का काम है वो पवस्त हो जाता है, आग का काम है वो जला डालती है, इसकी तो तासीर है। फरमाया तो फिर तुम इसको खुदा क्यों मानते हो? जो तुमसे भी मोहब्बत नहीं करती, तुम इसकी पूजा करते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो तुमसे मेहरबान नहीं है तुम पर। तो फरमाया तुम्हारा खुदा क्या है? फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो रब्बुल आलमीन है, वो है जो खालिकुल मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन है। फरमाया वो मुझे भूखे में सब कुछ खिलाता है, वह मैं नंगा हूं तो मुझे लिबास देता है, जब मैं परेशानी में होता हूं तो वो मुझे परेशानी से निकाल देता है। फरमाया अच्छा तो फिर तुम्हारा खुदा
क्या कर सकता है? और फरमाया ये मेरे खुदा की शान न पूछो, तुम अपने खुदा की बताओ, तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? कहा अच्छा तेरा खुदा आग से बचा सकता है? फरमाया मेरा खुदा आग से बचा सकता है। ये पूछ रहा है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से नहीं है। उन्होंने कितना बड़ा आग का इस्तेमाल किया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया था और कहा था कि ये जलकर राख हो गया होगा। लेकिन कई दिनों के बाद, महीनों के बाद जब आग बुझी तो इब्राहिम खलीलुल्लाह इस तरह अपना खुदा तो वो है जो आग में भी किसी को जोफ नहीं आने देता है। आग को भी कहता है या नारकूनी बर्दम व सलाम, मेरे इब्राहिम पे ठंडी हो जाओ, ठारने वाली भी ठंडी नहीं होगी। मेरा खुदा तो ये है। तो फरमाया हजरत गरीब नवाज आपको कहने लगे अच्छा आपको आग नहीं जलाती? फरमाया नहीं, अगर मेरा खुदा ना चाहे तो नहीं जला सकती। मेरे रब के हुक्म से हर चीज चलती है, अगर मेरा खुदा नहीं चाहेगा तो नहीं जला सकती। अच्छा फिर तुम बताओ, इसमें जाकर आग में कूद कर आपने उस पंडित का बच्चा उठाया, छोटा सा बच्चा था, बच्चा उठाकर आग में कूद गए। आग तो थोड़ी नहीं थी, बड़ी फैली हुई आग थी, एक बड़े महल की टाइप आग थी। आप आग में कूद गए, शोर मच गया, वो पंडित रोने लगा, साथ में जो इबादत कर रहे थे वहां वो आग के पुजारी थे वो भी रोने लगे। अपने बड़े बड़ों को बुला लिया, वो देखो ये गरीब नवाज खुद तो गया, मेरे बच्चे को भी आग में झोंक दिया, ये कैसा मुसलमान है, मेरे बच्चे को भी जला के राख करेगा, ये खुद तो गया मेरे बच्चे को भी ले गया। जब सारे इस आहो पकार में थे, चीख पकार कर रहे थे, दुनिया का एक इज्तिमा जमा हो गया, वो बातिल सारा इकट्ठा हो गया, तो हजरत गरीब नवाज अंदर से बच्चे को लेके इस तरह जाते हैं। खुदा ये है, मेरा खुदा ये है। इस तरह बच्चे को बाहर लेके आए। लोगों ने सवाल किया गरीब नवाज तेरा तो खुदा था, तू तो उस खुदा का मानने वाला था, ये बच्चा तो पंडित का था। फरमाया यही बात तो बताना चाहता हूँ, खादिम रिजवी के हाथ पे आते यही तो बताना चाहता हूँ, जो मेरे रब के मानने वाले के साथ भी आपको उसे भी नहीं नुकसान पहुंचाता। अगर नहीं है तो नमरूद की बेटी से पूछ, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए लेके जा रहे थे, महल के ऊपर से देखा, फरमाया इसका चेहरा तो हशाश सुभान अल्लाह, आग का तो डर खौफ ही नहीं है इसको, ये तो आग दूर दूर तक जला रही है, इसकी तपश इतनी है। लेकिन इब्राहिम खलीलुल्लाह का चेहरा देखो, आपका चेहरा हशाश बशाश है। ऊपर से महल से छलांग लगा दी उसने, कहा कि मैं भी इस इब्राहिम के मानने वालों में तो रहूंगी, इस इब्राहिम के मानने वालों में तो रहूंगी। क्यों? कहा चिड़िया ने, कौवा कहने लगा कि तू चिड़िया चूंच में पानी लाकर इब्राहिम की आग बजा रही है, तू क्या करेगी? फरमाया ना कुछ करूं, लेकिन रोजे क़यामत आग जलाने वालों का भी आग बुझाने वालों का भी हिसाब होगा। फिर चिड़िया तो आग बजाने वालों में होगी, तीन तख्त पे ना लाएंगे, लाने वालों के साथ तो होंगे, साथ में खड़े रहो, लाने वालों के साथ में खड़े रहोगे। धीर कौन लाएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये तो खुदा जाने, जाने। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। वक्त की कमी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज 7-8 अपने जो उनके मानने वाले थे उनको लेकर हिंदुस्तान के सफर के लिए निकले। आगे से शहाबुद्दीन गौरी अपना लश्कर लेकर आ रहा था और शिकस्त खुर्दा होकर आ रहा था, शिकस्त खाकर आ रहा था। रास्ते में पड़ाव डाला, देखा, जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के चाहने वालों ने देखा ये तो फौज जो है
یہ جو حکمران ہے اور یہ جو فوج ہے یہ تو مسلمانوں کی فوج لگ رہی ہے، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز تو فرق کرتی ہے نا کافر اور مومن میں۔ فرمایا وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ عبادت کر رہے تھے۔ معین الدین چشتی کے ساتھ جو 7-8 ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے آ کر غریب نواز کو بتایا یہاں کسی نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی فوج ہے، مسلمان حکمران ہے، کوئی مسلمان جرنیل ہے۔ جب شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ بابا جی سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا کہاں کا سفر کر رہے ہو، کوئی اللہ والے لگ رہے ہو؟ فرمایا ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، فرمایا ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جو کہتے ہیں مولوی کیسے کریں گے، مولوی ایسے کریں گے جیسے غریب نواز نے کہا، ایسے مولوی کریں گے، پتا چلے گا مولوی کیسے کرتے ہیں، ایک بار مولویوں کو آنے تو دو۔ ہر چیز تیر کی طرح سیدھی نہ ہوگی تو پھر ہم نے کہا۔ معین الدین چشتی کو جب دیکھا غریب نواز کو تو شہاب الدین غوری کہنے لگا آپ دیکھ رہے ہیں میرا جاہو جلال، میری حکومت، میرا پورا جتنا جاہو جلال ہے میں پورا جونپ دیا ہے، یہاں پورا لے کر آ گیا ہوں، لیکن میں شکست کھا کر واپس آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ we not depend on the quality, we depend on the quantity. We not depend on the quantity, we depend on the quality. فرمایا ہم ساز و سامان پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو عشق پہ بھروسہ کرتے ہیں، رسول پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب پہلی بار جب فیض آباد گئے تھے تو 2 بوری ہمارے پاس چنے اور پھلڑیاں بھی نہیں تھے، وہاں میوے کس نے پہنچائے تھے، کھانے کون پہنچایا تھا؟ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کھانا ختم نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی دوسرے کو کہتا تھا کھانا کھا لو، کہتا تھا میں تو کھایا یار اس کو دے دو، جس کو بھی کہتے تھے وہی کہتا تھا میں تو پور ہوں، مجھے تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں سے آتا تھا؟ من سلوہ ان کے لیے نہیں آتا، ان کے لیے بھی آیا تھا۔ من سلوہ لینے کے لیے اندر کچھ دم خم ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر تجھے جہان میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن عشق مصطفیٰ سینے میں ہے کہ تیری ہر سے شان بلند ہے۔ شان بلند اگر کرنی ہے تو آ خادم حسین رضوی کے مشن کے ساتھ جڑ جا۔ حضرت معین الدین چشتی آپ پھر گئے، پھر دیکھا 95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا کہ نہ پڑھایا، پانی کوزے میں بند کیا کہ نہ کیا، پانی کوزے میں بند ہوا کہ نہ ہوا۔ جب آپ آگ میں اس پنڈت کے بیٹے کو لے کر گئے، جتنا مجمع جمع ہوا تھا سب نے کلمہ پڑھا، فرمایا کہ غریب نواز کا رب سچا ہے، اس کے ہاتھ میں بچے کو بھی آگ نہیں جلا سکی۔ اس طرح بدلتے ہیں، انہوں نے 95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا، میرے قائد نے کروڑوں کو عشق جام سرکار کے عشق کا جام پلایا کہ نہیں پلایا، طرف اٹھی کہ نہیں طرف۔ یہ بات ہے عشق کی، ایسے تو شاعر نہیں کہتا، عشق پر اپنے عمل کی بنیاد رکھ، عقل کو تو تنقید سے فرصت نہیں ہے۔ عشق آخدہ عقل آخدی کلہ بچا کے رکھ، عشق آخدہ کلہ بال کے سیکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے تھے بابا جی ویل چیئر پر بیٹھ کر آپ کیوں فیض آباد ٹھنڈی ہواؤں میں جا رہے ہیں، آپ تو مدرسے آپ کے پاس ہیں، مسجدیں آپ کے پاس ہیں، آپ مدرس ہیں اور سینکڑوں مدرسوں کے آپ استاد ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں اس لاچاری میں؟ اس آپ جو آپ کے پاس ایک بہت بڑا عذر ہے، اس عذر کی متحد آپ تو بیٹھ سکتے ہیں آرام سے۔ آپ نے فرمایا جو چیز حسین کو کربلا میں لے کر وہی چیز خادم حسین کو فیض آباد میں لے کر وہی چیز خادم حسین کو مجبور کر رہی ہے فیض آباد جانے کے لیے۔ یہ عشق ہے، عشق اس طرح فیض آباد لے جاتا ہے، عشق اس طرح کربلا میں لے جاتا ہے، عشق اس طرح آگ میں دونس دیتا ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا۔ اس لیے وقت کی قلت ہے، کمی ہے، آپ لوگوں نے بہت بڑا ماشاءاللہ یہ اہتمام کیا ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال ہے اور میرے بابا جی کا فیضان ہے، میرے بابا جی کا کمال ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ عشق کے جام پلائے اور آپ یہاں
जहाँ के लोग मोबाइल पे जो बेहुदा फिल्में देखकर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, और आप सरकार की बारगाह में हाजिर होकर, और मैं आपको बता दूं, हमारे काबिरीन ने लिखा है, ये जो हम महफिलें सजाते हैं ना, इनका कमाल क्या होता है। फरमाया जी जो महफिलें हम सजाते हैं ना, फ्यूज़ो बरक़ात सवाब तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब ये मोबाइल की चार्जिंग कम हो जाती है ना, हम इसको चार्जर लगाते हैं, जब दिए की लाइट मदम हो जाती है हम उसमें तेल डाल देते हैं। फरमाया जब इश्क़ मुस्तफ़ा की कमी होती है हम महफिल सजाते हैं, कमी होती है चंद एक बातें ये इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम बाबा जी सरकार ने पिलाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें फरमाए, मरकज़ को नूर फरमाए, और उनके तफ़ैल उनके सदके अल्लाह ताला हमें भी हर किस्म की परेशानियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला दीन और दुनिया की कामयाबियाँ ता फरमाए। चांद एक गुज़ारिश आते हैं कि बाबा जी सरकार फरमाते थे, हम आपसे सारा टाइम नहीं मांगते, लेकिन अगर अपने लिए इतना काम करते हो तो आखिरत के लिए, सरकार के लिए कोई 1 घंटा 2 घंटे तहरीक के लिए भी निकालो इंशाअल्लाह। दीन ऐसे तख्त पे नहीं आता, दीन इस तरह तख्त पे नहीं आता कि जब आपको बुलाया जाए तो आप हज़ारों बहाने बनाएं, और जो पैसा देने के लिए, माल देने के लिए, इस दीन के लिए, खुदा का दिया हुआ, खुदा की राह में देने के लिए, ये मिशन आप क्या कहते हैं कि मिशन हक का है कि नहीं है? बेशक बोल के हाथ उठा के बताएं, ये मिशन हक का है कि नहीं? फिर हक के रास्ते में माल, जान, इज्जत, आबरू सब कुछ कुर्बान करना है, करना है ना। सरकार ने ये फरमाया है कि तुम्हारा अमीर अगर मुनक्के के सर वाला भी मुकर्रर कर दिया जाए तो आपने उसकी इत्तिबा करनी है, इंशाअल्लाह भी करनी है। मेरे बाबा जी, मेरे कायदे मोहतरम ने फरमाया था, जब तक हम आपको हक के रास्ते पर लेकर चले, आपको हक के रास्ते पर लेकर चले, आपने हमारी बात को मानना है। अगर हम हक से हटकर आपको कोई बात कहें तो आपने हरगिज़ हमारी बात नहीं माननी। हमारा यही पैगाम है कि जब तक हम ये हक का पैगाम लेकर चल रहे हैं, नमूसे रिसालत खत्म नबूवत का काज लेकर चल रहे हैं, सरकार के दीन को तख्त पर लाने के लिए हम इस काज के साथ हैं, आप लोगों ने भी इसको टाइम भी देना है, माल भी देना है, और अपनी जान को भी कुर्बान करना है इंशाअल्लाह। जानें बचा कर रखने से इश्क के कभी भी दावे सच्चे नहीं होते। इश्क के दावे सच्चे तब ही होते हैं। अभी ये 2 हफ्ते के पहले की बात है, ये एक पीटीआई कोई पीटीआई का कोई बंदा था, वो एक ग्रुप था जो सियासी लोगों का था, मैं भी उसमें शामिल था। वो रासुल खैमा से वो बड़े बहस मुबासे कर रहा था। एक बार उसने मेरे कायद के बारे में कुछ अल्फाज बोल दिए, मैंने उसको समझाया प्यार से, मैंने कहा भाई अगर तुम हक पर हो तो तुम्हें यकीन होना चाहिए, मुझे हक का यकीन है कि मैं हक पर हूँ, तो इसके लिए मैं तुम्हें दावत देता हूँ, तुम एक दिन मुकर्रर कर लो, रासुल खैमा में भी पहाड़ है, रेत है, हर जगह मैदान है, और फजीरा में भी है, मैं लिख कर दूंगा कि मुझे कुछ भी हो गया तो ये बंदा जिम्मेदार नहीं है, मैं अपना खुद जिम्मेदार हूँ, और आग जलाकर हम दोनों उसमें कूदेंगे, लेकिन हाथ पकड़कर नहीं कूदेंगे, दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे, तो अलग लगाएगा, मैं अलग लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे हाथ से हाथ टच होएगा तो मैं तो सरकार का गुलाम हूँ। उसने मुझे उसने कहा तुम लोग जादूगर हो, मैंने कहा सरकार को भी लोग यही कहते हैं, तो आज उनके मानने वालों को भी लोग यही कहेंगे ना, तो हमने तो सुना ही यही है। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कितनी तलवार चलाई है, आपको शहादत नहीं मिली ना, आपको जो मौत आई है वो आपकी चारपाई पे आई है, आपके बिस्तर पर आई है, लेकिन आपने सिर्फ तलवार ही नहीं चलाई। एक बार ईसाइयों के साथ आपका सामना हो गया, ईसाइयों के साथ उन्होंने कहा खालिद एक बात पे इत्तेफाक करते हैं, हम आज तलवार से मुकाबला नहीं करते हैं, आज फैसला एक चीज पर करते हैं। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे, बताओ तुम अपना मुतालबा पेश करो। उन्होंने एक जहर की शीशी लेकर आए, वो जहर वो था
अकाबरीन ने लिखा है उस जहर को अगर कोई मस कर लेता उससे पूरे जिस्म की चमड़ी उतर जाती, वो जहर इतना तेज था। फरमाया, कहने लगे खालिद ये जो जहर है ये आप पियोगे, अगर आप सच्चे हुए तो आप बच जाओगे, अल्लाह ताला इससे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर हम सच्चे हुए तो हम बच जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने नहीं पूछा है कि ये जहर आप पहले पियो या आप पहले पियोगे या मैं पहले पीऊंगा, आपने जहर उठाया ऐसे करके पी लिया। जब पी लिया तो उन लोगों ने दौड़ लगा दी, भागना शुरू किया। जो सहाबा किराम थे उन्होंने कहा, ए खालिद आपने जो जहर पिया है आपको पता है, वो बातें कर रहे थे आपस में, ये जहर इतना तेज है इसको मस भी करेगा, इसके जिस्म की चमड़ी उतर जाएगी। फरमाया, मैंने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो हक पर होता है उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाती, जो पहुंचाती है वो खुदा के हुक्म से पहुंचाती है। फिर मैं हक पर था, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। फरमाया, मेरी सरकार ने ये फरमाया था, ये पढ़ लेना, वो कोई चीज जमीन और आसमान में नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैंने सरकार पर भरोसा किया, मैंने सरकार पर यकीन किया है। बात याद रखना, हक पर वही बंदा होगा जो अल्लाह पर तवक्कल करेगा और रिश्के मुस्तफा से माला माल होगा, वो हक पर होगा। नहीं तो देखो तारिक बिन ज़ियाद ये पहला काफिला था, ये इस्लाम का पहला काफिला था जो इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए, दूसरे मुल्क के लिए, यूरोप के लिए सफर कर रहा था, जिसमें सहाबा भी थे, तबा ताबईन भी थे। और समंदर के किनारे पर पहुंचकर तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, जिसने वापस जाना है वो जा सकता है, किसी के साथ ये जबर नहीं है। ये मेरे बाबा जी सरकार फरमाया करते थे ना, ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाए, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। जिसने आगे बढ़ना है, फैजाबाद में शहादत भी देनी पड़ेगी, उसे वजीराबाद में भी फायर खाने पड़ेंगे, उसे तेजाब में भी नहाना पड़ेगा, उसे छैल भी खाने पड़ेंगे, आंसू गैस भी खानी पड़ेगी। और फिर मैंने देखा है किस तरह हमारे मुजाहिदीन एक दूसरे को पीछे करके कह रहा था, तुम मेरे पीछे आ जाओ, मुझे आगे जाओ। देकर बागी के नाम बागी, मौत देकर इससे आशिका ने मुस्तफा को बागी। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, यहाँ मैं पड़ाव डाला है, जिसने जाना है यहाँ से जा सकता है, लेकिन जब आगे चले गए फिर रास्ता बंद हो जाएगा, फिर जाने की कोई बात नहीं है। या शहादत है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन। लोग ऐसे ही समझते हैं मुसलमान होना आसान है। ये मुसलमान होना आसान होता तो फिर सहाबा किराम क्यों कटते, हज़रत मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा क्यों निकलता। तो फरमाया कि अच्छा किसी ने अगर जाना है, तारिक बिन ज़ियाद ने फरमाया अगर किसी ने पलटना है तो पलट सकता है। ये सफर है कुएं जाना, ये सफर है कुएं जाना, ये सफर है कुएं जाना, सफर है यहाँ कदम कदम यहाँ कदम कदम से जिंदगी हो प्यारी, जिंदगी हो प्यारी, यहीं से लौट जाए। आज भी वक्त है, नहीं तो सरकार की बारगाह में बाबा जी सरकार फरमाते थे ना, मैं आपकी शिकायत कर देंगे, नहीं तो आज हमारे साथ खड़े जो खड़े हो गए हैं वो तो किस्मत वाले हैं, हम सूबे हशर चलेंगे और काफिला रवा होगा, काफिला सलार के साथ, काफिला सलार के साथ मिल जाओ, आज भी वक्त है। और फिर जब सब ने कहा कि नहीं तारिक ये क्या बात कर रहे हो, हम सरकार की दीन के लिए निकले हैं, दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं। फरमाया अच्छा फिर आ जाओ। कश्तियों पे बैठकर जब समुंदर पार किया, उंदलस में दाखिल हो गए, तो फरमाया कश्तियों को छोड़ना नहीं है, बांधना नहीं है, इकट्ठी करके इनको आग लगा दो। आग लगा दी। अकल ने वहाँ तनकीद की, कई अकल वालों ने तनकीद की, तारिक ये क्या किया, अगर यहाँ शिकस्त खुर्दा हम हो गए, भागने के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ा है, वो कश्तियाँ भी जला दी हैं। और जो इश्क वाले थे उन्होंने कहा तारिक तुमने ठीक किया है, सरकार के दीन के लिए निकले हैं, या शहादत है या सरबुलंदी ये दीन है। इंशाअल्लाह दीन का परचम या लहराएंगे या शहादत कबूल करेंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा अज़म है कि बाबा जी जो मिशन दिया है उसको लेकर हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, शहादत हम कबूल करेंगे।
کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی بھی ہم ظالم کی حمایت میں بیٹھیں گے نہیں، کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو دین کے لیے وقت نکالو گے انشاءاللہ، بابا جی کے مشن کے لیے وقت نکالو گے، حال بھی دو گے انشاءاللہ، حال بھی دو گے انشاءاللہ، ہاتھ بھی پیش کرو گے انشاءاللہ۔ ان کے ہاتھ کھڑے نہیں ہیں، انہیں کوئی لگتا ہے کہ یہ حق کا راستہ نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، 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 زندہ باد۔ انہیں جانا، 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 آنا سے کہا